Hello, welcome to my maths class, students. Till now we were studying about integrals. We studied indefinite integrals as well as definite integrals. After definite and indefinite integrals, now we'll use what is the use of this integrals. That is the application of integrals, and which will make the use of definite integrals. So first of all, let us try to, in this chapter we'll study about area under the curve. First of all, let us differentiate what is the definite integral and area under the curve. If the question comes like this, evaluate the integral of fx from the limit a to b. If it is written evaluate, it means algebraic sum of area bounded by this curve fx between this x is equal to a, x is equal to b, x is equal to a, x is equal to b and x-axis. Whatever is the area bounded between all these, the algebraic sum of that area will be calculated if it is written evaluate this. But if the same question is like this, you are to find the area of this, then here I have written algebraic sum and here it will be the numerical sum of area bounded by the same y is equal to fx, x is equal to a, x is equal to b and x axis. What is the difference in between these two? Let us try to understand with the help of one example. Suppose we have been given this one curve. Suppose this is the curve. Suppose this is the curve. This is x is equal to a. This is x is equal to b. And this curve is y is equal to fx. The same curve is here, suppose. Same curve is here. It is. This is x is equal to a and x is equal to b. Let me tell you one thing, students. Whenever the area is below the x-axis and you are taking the limits on the x-axis, the area is below the x-axis, then the value of that is the negative. That is negative. So it will come, if you calculate it, if you calculate this, suppose this area is 2 units, 2 square units. Suppose it is 2 units and this is suppose 5 units. Okay. Here also this is 2 units and this is 5 units. Okay. Now algebraic sum means, and listen, this is minus 2. It will be written as minus 2 because it is under x-axis, below the x-axis it is, because the value of the y is here negative. That's why it is minus 2. Here also it is minus 2. When it is written algebraic sum, then the total area, this, the answer of this will be equal to minus 2 plus 5, means that is the net answer is 3. But here when you are to find out area, and we know that area can never be negative. Area is never, it is never negative. So it will be, though its value is coming out negative, but we know the area is always positive, then we will take the modulus of this. So it is minus 2, modulus of minus 2 plus 5. So area will be here, this area will be here, minus 2 modulus is 2 plus 5, this is 7. Okay. But here in this case, because we are to only evaluate, it is not given to find the area. We are to evaluate the from x is equal to a and x is equal to b, then we will find out the algebraic sum of area. Okay? This is the algebraic sum. Whatever the answer is coming out, take it as it is and write down. And in
this chapter 7 in integrals we were doing like this, ठीक है. And here it is numerical sum. एरिया का मतलब एरिया कैन नेवर बी नेगेटिव. अगर नेगेटिव भी आ रहा है तो पहले उसको पॉजिटिव बनाइए, ठीक है, फिर उसके बाद उसको ऐड करना है आपने. ओके जी. Let us try to understand with the help of one more example. I have taken evaluate from 0 to 4 pi sin x dx and one more question is area of 0 to 4 pi sin x dx. यहाँ एरिया निकालना है, यहाँ सिर्फ इवेल्युएट करना है. अगर मैं इसको भी आपको ग्राफिकली दिखाऊं तो 0 से अगर ये 1 है और ये -1 है, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, तो ये आपके पास होगा ऐसे, और ये ऐसे. दिस इज पाई 2 पाई देन 3 पाई एंड 4 पाई. अब ये देखिए जो ऊपर है एक्स एक्सिस के ऊपर वो पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव है, ठीक है. अब इसमें एक फ्लैट का जो एरिया होता है वो 2 यूनिट्स होता है. 0 से पाई बाय 2 तक आपका ये 1 यूनिट, इधर वाला भी 1, तो ये टोटल 2 यूनिट्स है. तो अगर मैं इवेल्युएट कर रही हूँ तो ये वाला एरिया क्या होगा, ये +2, ठीक है, ये वाला -2, फिर ये +2 और ये वाला -2. तो अगर इवेल्युएट कर रही हूँ तो जो जैसे साइन है वैसे ही रहेगा, ये कैंसिल हो गया और इवेल्युएशन में इसका आंसर 0 आया. लेकिन अगर आप एरिया निकाल रहे हैं, अगर एरिया निकाल रहे हैं तो ये +2 फिर प्लस करके अगर नेगेटिव है तो आप उसका मॉडुलस लीजिए, एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है, बिकॉज एरिया कैन नेवर बी नेगेटिव. इवेल्युएट के केस में आप पॉजिटिव नेगेटिव, वहां अलजेब्रिक सम है, ठीक. यहाँ फिर +2, ऊपर वाला केस +2 और नीचे वाला केस ये फिर -2 का मॉडुलस. तो 2 + 2 + 2 + 2 ये आ गया 8 स्क्वायर यूनिट्स. तो इसमें 0 था, इसमें 8 है, ठीक है. तो आपने अगर एक ही सम, सेम सम अगर आपने पहले 7 चैप्टर में इंटीग्रल्स में किया, उसका आंसर ऐसे है, तो यहाँ पर इस तरीके से अब हो सकता है, ये समझ लीजिए पहले, ठीक है. हाँ जी. If any question comes to find out the area under the curve, then what are the different steps to find out that area under the curve? Number 1 step is for finding area under the curve, first of all check the symmetry, ठीक है. Means tracing of, actually first of all is the tracing of the curve. And while we trace the curve, means we draw the curve. While drawing the curve, what are the different points we need to keep in our mind? One, first is the check the symmetry, ठीक है. About x-axis, if all the terms, means आपका जो curve है that may be symmetrical about x-axis, that may be symmetrical about y-axis, that may be symmetrical about both the axes, that may be symmetrical about origin, and there are so many other also, but these are not in your syllabus. We will study about only these. One more is also one question is given, that is the symmetrical about origin, but we will discuss in detail only about these 3, okay. If all the terms of y are even degree terms, then we say it is symmetrical about x-axis. आप देख सकते हैं इसमें जो y है उसकी डिग्री है even. Then it is symmetrical about x-axis. So this is the standard parabola of this type. If it is a negative, then it will be in this direction. You have already studied in your 11th class in the conic section. Now, if all the terms of x are even degrees, x की terms even degrees में है, तो y के अबाउट सिमेट्रिकल होगा, अपोजिट, ठीक है. जैसे यहां पर अगर आपकी x की डिग्री आप यहां पर देख रहे हैं, x की डिग्री इवन है तो सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस है. अगर ये नेगेटिव होता -4ay तो ये नीचे होता, इस तरीके से. नाउ सिमेट्रिकल अबाउट बोथ द एक्सिस, यानी x और y दोनों की डिग्रीज जो है वो इवन होती. जैसे कि ये सर्कल की इक्वेशन है x² + y² = r², ठीक है. या फिर इलिप्स से देखिए x² / a² + y² / b² = 1. आई एम टेकिंग ओनली द स्टैंडर्ड केसेस बिकॉज in 12th class you have to draw the curve only of standard forms. Now hyperbola x² / a² - y² / b² = +-1. Okay, so all these, in all these 3 cases you can see here the degree of x as well as of y both are even. तो इसमें अभी देखिए ये सिमेट्रिकल है ना, x एक्सिस के अबाउट जैसा ऊपर है वैसे सेम यू कैन सी हियर.
यानी कि ये एक्स एक्सिस इसको 2 इक्वल पार्ट्स में सिमेट्रिकल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। ऐसे ये वाई एक्सिस इसको सिमेट्रिकल, ये इसके वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, इधर भी उधर भी दोनों सेम है। अगर आप इधर देखिए सर्कल अगर ड्रॉ करते हैं, सर्कल अगर ड्रॉ करते हैं तो ये एक्स एक्सिस एज वेल एज ऑफ वाई एक्सिस, ये दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है ना। देखो एक्स के अबाउट भी सिमेट्रिकल है दोनों साइड, और वाई के अबाउट भी ये सिमेट्रिकल है। अगर आप इलिप्स चेक करते हैं, अगर आप ये सपोज करो मैंने मेजर एक्सिस और एक्स एक्सिस लेके बनाया है, तो जैसा आपका है सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस भी दिख रहा है एंड सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस भी दिख रहा है। हाइपरबोला अगर आपका ये बनता है तो देखिए अगर एक्स एक्सिस के अबाउट ऊपर सेम है नीचे सेम है, वाई एक्सिस के अबाउट भी, या फिर इस तरीके से दूसरे वाला बनाओ आप ऊपर और नीचे इसके कप्स बनते हैं, तब भी ये सिमेट्रिकल अबाउट बोथ द एक्सिस है। ठीक है, तो हमें जब ट्रेसिंग ऑफ कर्व करेंगे तो ट्रेसिंग ऑफ कर्व में सबसे पहले इसको हम बोल सकते हैं सिमेट्री चेक करना है। सबसे पहले आपने सिमेट्री चेक किया, उसके बाद हम कुछ स्टैंडर्ड आपके कुछ है कुछ फॉर्म्स हैं जिनकी आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ शेडिंग होती है, किस तरीके से होती है। पैराबोला देखो स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन में अभी मैं आपको बताती हूँ। हाँ जी स्टूडेंट्स, अगर हमें ये निकालना है कंसेप्ट ऑफ एरिया कि हम कैसे निकालेंगे, ये थोड़ा सा फटाफट से जल्दी से बताती हूँ आपको। a टू b एफ एक्स डी एक्स का अगर आपको एरिया निकालना है तो कैसे निकालेंगे। देखिए इसमें मैंने ये कर्व ले लिया y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये मैंने कर्व लिया। ठीक है, इसका अंडर आई हैव टू फाइंड आउट द एरिया अंडर दिस कर्व फ्रॉम a लिमिट a, दिस इज x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b तक। ठीक है, ये x इज इक्वल टू a से लेकर x इज इक्वल टू b तक के बीच में एरिया निकालना है एंड dx इज रिप्रेजेंटिंग एंड बिटवीन x एक्सिस निकालना है। तो एरिया अंडर दिस कर्व, ये मतलब मुझे ये सारा एरिया निकालना है, ये वाला एरिया मुझे आई हैव टू फाइंड आउट। तो इसके लिए निकालने के लिए मैंने क्या किया, आई एम डिवाइडिंग दिस इनटू स्लिट्स, इनफाइनाइट स्लिट्स मैंने बना ली, इसकी छोटी छोटी स्लिट्स बना ली, ये छोटी छोटी स्लिट्स बना ली मैंने। ठीक है, ये छोटी छोटी स्लिट्स बना ली। ठीक है, तो अब ये छोटी छोटी जो स्लिट्स बनाई तो इसमें मैंने ये जो विड्थ ली इसकी ये ले ली, क्योंकि एक्स एक्सिस पर है, इट्स वेरी वेरी स्मॉल, बहुत स्मॉल है, इसको मैंने लिखा dx, इस छोटे वाले छोटे छोटे रेक्टेंगल्स बना लिए। तो ये छोटा सा जो स्लिट है छोटा सा, उसका मैंने विड्थ dx लिया और ये यहां से यहां तक जो इसकी लेंथ है वो, क्योंकि y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो ये y है, यहां से यहां तक ये y है। ठीक है, अब इस ये एक छोटा सा जो रेक्टेंगल है, अगर ऐसे बहुत सारे रेक्टेंगल्स हो जाएं, अगर मुझे एरिया निकालना है तो उनका सबमिशन, उन सब का सम, यानी कि सम अगर मैं ले लूं, सबका सम ले लूं तो मेरा पूरा एरिया अंडर द कर्व निकल जाएगा, छोटे छोटे रेक्टेंगल्स का एरिया, और उसका मैं सम ले लूं। इसी सम के एस से ही हमारा इंटीग्रेशन का साइन आया है। ठीक है, ये इंटीग्रेशन का साइन इसी एस से आया है कि सम कहां से कहां तक लेना है आपको, ए से बी तक लेना है। ठीक है, और किनका, ये छोटे छोटे रेक्टेंगल्स का, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है। अगर हम यहां पर देखें लेंथ कितनी है इसकी y, ठीक है, और ब्रेड्थ कितनी है इसकी dx। ठीक है, तो y dx, छोटे छोटे y dx यहां पर लेंगे तो हम जो सम लेंगे y dx। ओके, तो ये मेरा टोटल, जब मैं इसका सम ले लूंगी तो मेरे पास आ जाएगा एरिया, शेडेड एरिया या रिक्वायर्ड शेडेड एरिया मेरे पास आ जाएगा फ्रॉम a टू b, ये सारा एरिया मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, आप इसमें आप y क्या है आपका fx, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं a टू b fx dx। ये तो तब है जब आपका इस तरीके से, अगर सपोज करो सेकेंड केस मैं यहां पर ले रही हूं, सपोज इट इज लाइक दिस, मैंने इसको, अगर मेरे पास क्वेश्चन है इस तरीके से, ये है कर्व, अगर सपोज द कर्व इज लाइक दिस। ठीक है, और मुझे अब अगर एरिया मुझे दिया हुआ है, निकालना है, अब गिवन है एज पर द क्वेश्चन, अगर ये है C और ये दिया है D। ठीक है, ये C एंड D दिए हुए हैं। ठीक है जी,
हाँ जी, अगर एरिया बाउंडेड बाय x इज इक्वल टू जी वाई, वाई इज इक्वल टू सी, वाई इज इक्वल टू टी एंड वाई एक्सिस आपको निकालना है। तो देखो x इज इक्वल टू जी वाई, दिस इज द फंक्शन, y इज इक्वल टू सी, y इज इक्वल टू डी एंड y एक्सिस आपको निकालना है। तो मैं इसको अगर एरिया बाउंडेड बिटवीन दिस इज दिस, है ना, अगर मैंने इसको शेड किया तो ये वाला एरिया है आपके पास, ठीक है। तो अब स्लाइसिंग किधर करें? स्लाइसिंग जैसे इसमें अलोंग एक्स एक्सिस किया था, अब हम स्लाइसिंग अलोंग एक्स एक्सिस करेंगे या वाई एक्सिस? देखो वो तो ये अलोंग एक्स एक्सिस भी सकता है, अगर मैंने यहाँ स्लाइसिंग अलोंग एक्स एक्सिस कर दी, यहाँ कर दिया, ठीक है। तो मुझे पहले देखो, पहले तो इस रेक्टेंगल का एरिया लेना पड़ेगा और फिर इसका, तो इट बिकम्स लेंथी, लॉन्ग हो जाएगा ये। इसलिए देखो यहाँ से यहाँ तक एक ये रेक्टेंगल दिख रहा है, फिर इस पोर्शन का आपको एरिया लेना पड़ेगा। तो 2 पार्ट्स में करने के बजाय सिंपल अगर हम स्लाइसिंग अलोंग वाई एक्सिस करते हैं देन इट बिकम्स इजी। जब ये वाई एक्सिस के साथ है, इसकी शेडिंग टच कर रही है वाई एक्सिस के साथ, तो हम इसकी स्लाइसिंग अलोंग वाई एक्सिस कर रहे हैं। ये देखो ये वाई एक्सिस के अलोंग हमने इसकी स्लाइसिंग की, ये आपकी एक स्लाइस बना ली वाई एक्सिस के अलोंग। तो इसकी विड्थ होगी डी वाई और यहाँ से यहाँ तक ये हो गया x। कितना है? यहाँ से यहाँ तक ये x है, यहाँ से यहाँ तक ये x है, ठीक है। तो जब हम इसका एरिया लेंगे, पूरे का एरिया लेना है, तो ये छोटे 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 यहाँ पर इनफाइनाइट रेक्टेंगल्स का एरिया है। तो हम कैसे शो करते हैं उसको? रिक्वायर्ड शेडेड एरिया, रिक्वायर्ड शेडेड एरिया जो आपका होगा वो होगा समिशन ऑफ, यानी सम ऑफ, जिसको हम इंटीग्रल से दिखाएंगे फ्रॉम सी टू डी, इस छोटे से रेक्टेंगल का एरिया, इस छोटे से रेक्टेंगल का एरिया, इसकी लेंथ x, इनकी विड्थ y, तो x dy। x dy को आप कैसे लिख सकते हैं? x की जगह gy आ जाएगा, फंक्शन g इन टर्म्स ऑफ y, तो c टू d gy dy। और वैसे ही मैंने आपको बोला था कि अगर आपको चेक करना होता है कि आपने जब भी कर्व का एरिया निकालना है, ये सारे एक ही वेरिएबल की टर्म्स में, ये सारे टर्म्स एक ही वेरिएबल, c इन टर्म्स ऑफ y है, d इन टर्म्स ऑफ y है, आपका g इज ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ y एंड dy इज रिप्रेजेंटिंग योर y एक्सिस, ठीक है। और इधर सारे x की टर्म्स में थे, ओके। हाँ जी स्टूडेंट्स, अगर आपके पास आए एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स, ठीक है, तो अगर आपको दो कर्व दिए y इज इक्वल टू fx, y इज इक्वल टू gx एंड x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू b, ठीक है, एंड योर fx इज ग्रेटर देन इक्वल टू gx दिया हुआ है, तो आपको एरिया अगर निकालना है तो इसके बीच में एक बाउंडेड एरिया कैसे निकालेंगे? देखो y इज इक्वल टू fx दिया हुआ है, y is equal to gx and fx you can see fx is greater than gx है, इसका मतलब, और ये x is equal to a, x is equal to b के बीच में आपको एरिया निकालना है। ये x is bounded between a and b, तो हमें ये शेडेड एरिया निकालना है, ये शेडेड एरिया आपको निकालना है, ठीक है जी। अब ये शेडेड एरिया निकालने के लिए, ठीक, अब मैंने स्लाइसिंग जो की है अलोंग एक्स एक्सिस की, ये मैं स्लाइसिंग कर रही हूँ अलोंग एक्स एक्सिस, ये कर दिया मैंने स्लाइसिंग अलोंग एक्स एक्सिस, ये ठीक है। तो अब यहां पर ये हो गया dx। अब इसकी लेकिन लेंथ कितनी होगी? देखो ये जो लेंथ है, ये टोटल लेंथ में से ये वाली लेंथ माइनस कर देंगे, ठीक है। यहां से यहां तक ये जो y की लेंथ है, दिस इज अलोंग दिस gx, और यहां से यहां तक x एक्सिस से यहां तक जो है दैट इज अलोंग fx। तो पहले यहां से आप लीजिए, ये वाली जो लेंथ है यहां से नीचे तक, ये वाली जो लेंथ है ये मैंने मानी y1 है, ठीक है। ये लेंथ यहां से यहां तक y1 है, और ये मैंने यहां से यहां जो आपकी ये वाला कर्व है जो gx, उसके अलोंग जो उसकी जो आपके यहाँ से मतलब y एक्सिस के अलोंग है लेंथ, दैट इज y2, और हमें ये वाली चाहिए। अब ये कितनी आएगी? y1 माइनस y2, इसकी जो हाइट आएगी, जो हमारी स्लिट की हाइट आएगी, हाइट ऑफ स्लिट क्या आ जाएगा आपके पास? वो आ जाएगा y1, क्योंकि इस पूरा y1 था और ये छोटा सा y2 है, y1 माइनस y2, ठीक है। अब मैं अगर एरिया ऑफ स्लिट लूं, एरिया ऑफ स्लिट लूं, एक स्लिट ये छोटा सा, तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ, इसकी लेंथ कितनी आ रही है? ये देखिए, इसको हाइट की जगह आप अगर लेंथ ऑफ स्लिट बोल दीजिए, ये लेंथ है स्लिट की, वो है y2 माइनस y1 माइनस y2, और ब्रेड्थ कितनी है? ये है dx,
ठीक है। अगर मुझे ये पूरा शेडेड एरिया निकालना है तो ये छोटी छोटी स्लिट्स का एरिया आपको ऐड करना पड़ेगा, उनका सम लेना पड़ेगा, और उनका सम हम कैसे दिखाते हैं, इंटीग्रल साइन से। तो हम रिक्वायर्ड शेडेड एरिया क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड शेडेड एरिया हमारा हो जाएगा कहां से कहां तक, ए टू बी, इन सब का सम, यानी ये छोटी छोटी स्लिट्स का ये रिप्रेजेंट कर रहा है सम को, यानी कि y1 माइनस y2 dx। अब y1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक्चुअली y1 था, ये y2 था, है ना। y1 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, fx को। तो दिस इज इक्वल टू a टू b, दिस इज fx माइनस gx, यानी फर्स्ट कर्व माइनस सेकेंड कर्व। ऊपर वाला जो कर्व है वो बिगर जो है, दैट कर्व विल बी fx माइनस gx dx। अच्छा, जब हम क्वेश्चन करते आते हैं तो हम क्या करते हैं हमेशा, जैसे कि एक कर्व है तो इसमें आपके पास सपोज ये है और दूसरा कर्व ये है और इसके बीच में ये एरिया निकालना है, तो आप क्या करेंगे, पहले ये इसका एरिया जो ऊपर वाला है, जो बिगर ऊपर जिसकी हाइट है, उसी को पहले लेंगे और नीचे वाले को हमेशा माइनस करेंगे, इसके अकॉर्डिंगली आप देख लीजिए, ठीक है। तो ये आपके पास एरिया आ जाएगा, एरिया बाउंडेड बिटवीन टू कर्व्स। हाँ जी स्टूडेंट्स, अगर आपको अब you have to find out the area bounded between first curve is x1 is equal to fy and x2 is equal to gy and y is equal to c, y is equal to d। तो ये कर्व है आपके पास और fy is greater than equal to gy, यानी fy इधर आएगा, gy पीछे पर, fy is bigger है, ठीक है, and gy is smaller। तो आप इसमें हमने ये ड्रॉ कर लिया, ये आपके पास fy ये gy है आपका कर्व। अब इसका एरिया निकालना है एंड y फ्रॉम c टू d इट इज गिवन, तो हमें ये शेडेड एरिया निकालना है, ये शेडेड एरिया निकालना है, ये वाला देखो, y इज इक्वल टू c, ठीक है, y इज इक्वल टू d, gy एंड fy, इनके बीच में जो एरिया निकल रहा है ये एरिया निकालना है। तो अब जो स्लाइसिंग किया हमने, क्योंकि ये y एक्सिस पर आपको लिमिट्स दी हुई हैं, तो हमने स्लाइसिंग जो किया वो अलोंग y एक्सिस, along y axis एक स्लाइस बना लिया है हमने, एक स्लिट ये छोटी सी बना ली। अब इस स्लिट की ये जो आपको यहाँ से यहाँ तक ये छोटी सी, अगर आप ये देखो ये है dy, ये छोटी सी इसकी जो विड्थ बनेगी यहाँ पर वो dy बन जाएगी, ठीक है। अब इसकी लेंथ यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, देखो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक ये पूरा x1 ले लूँ और यहाँ से यहाँ तक ये x2 ले लूँ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x1 माइनस x2, x1 माइनस x2। तो ये छोटा छोटा सा ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये छोटी सी जो स्लिट दिखाई दे रही है, ये छोटा सा जो एक रेक्टेंगुलर पीस दिखाई दे रहा है, इस रेक्टेंगुलर पीस की जो एरिया है लेंथ इंटू ब्रेड्थ होगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्लिट या एरिया ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्लिट जो है वो होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ इसकी बनी x1 माइनस x2, ब्रेड्थ इसकी ये छोटी सी dy है, ठीक है। लेकिन अब हमें अगर टोटल शेडेड एरिया निकालना है तो ये छोटी छोटी स्लिट्स का एरिया ऐड करना पड़ेगा, जिसको हम सबमिशन से दिखाते हैं। सबमिशन का मतलब मैंने आपको बताया इंटीग्रल, फ्रॉम कहां से कहां तक, c टू d, c टू d ये x1 माइनस x2 dy। x1 आप ये देखना, ये वाला लेना जो बिगर वन है, और x2 ये वाला। तो अब इसमें c टू d, x1 की जगह क्या आ जाएगा, fy माइनस gy dy, ये इस तरीके से निकला है। अंडर स्टूडेंट्स ये आपका इसमें लास्ट टाइप है, इसमें निकालना है एरिया बाउंडेड बाय टू कर्व्स, y इज इक्वल टू fx एंड y इज इक्वल टू gx, ये दो के बीच में निकालना है। तो मेरा ये कर्व है y इज इक्वल टू fx, y इज इक्वल टू gx, और इसके अलावा हमें लिमिट्स नहीं दी हुई। अब हमें नहीं पता कि कहां से कहां तक निकालना है, those limits have not been given to us. In that case we will find out point of intersection. Now we will find out point of intersection. जब आपको लिमिट्स नहीं दी होंगी, जब
हम पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, सपोज करो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया ए बी और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया सी डी, जहां पर ये दोनों कर्व्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो अगर हम अलोंग एक्स एक्सिस निकालते हैं, जैसे अभी मैंने पहले किया हुआ था, क्योंकि हमें ये शेडेड एरिया इन दोनों कर्व्स के बीच में ये एरिया निकालना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला। एक्स एक्सिस के अलोंग ये पॉइंट है ए और एक्स एक्सिस के अलोंग यहाँ पर ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट है सी, यानी फ्रॉम ए टू सी निकालना है कर्व आपने। और बिल्कुल वैसे ही करेंगे इसको, हमने अब इसकी वही स्लिटिंग करनी है, स्लाइसिंग करनी है। हमने ये एक छोटा सा रेक्टेंगल यहाँ पर बना लिया इसकी, ये क्योंकि मैं एक्स एक्सिस के अलोंग ही मैंने लिमिट्स ली है, तो मैं इस छोटा सा जो विड्थ है ये dx लूंगी, क्योंकि अलोंग एक्स एक्सिस में ले रही हूँ, ठीक है। और इसका ये जो पॉइंट है ये आपको पता ही है, जैसे पहले निकाला था कि आपका ये, अगर हम इसको y1 मान लेते हैं, इसको y2 मान लेते हैं, तो ये आपका y1 माइनस y2 है। तो आपका बिल्कुल जैसे हमने पहले किया था बिल्कुल वैसे ही आ जाएगा, बस ये डिफरेंस है यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यू आर टू फाइंड आउट योरसेल्फ, मींस द लिमिट्स यू आर टू फाइंड आउट योरसेल्फ, अदरवाइज इट वुड बी सेम। सो रिक्वायर्ड शेडेड एरिया विल बी फ्रॉम ए टू सी, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब आपकी लेंथ ये है, क्या है आपकी, ये वाला y1, अगर हम यहाँ से यहाँ तक y1 ले रहे हैं और ये y2 है, तो y1 माइनस y2 dx। अब y1 मैंने इस फिगर को यहाँ से यहाँ तक वाला का जो है fx, तो आपका ये आया a टू c fx माइनस ये आपका y2 यहाँ से यहाँ तक, कौन से कर्व के अलोंग है ये gx एंड dx, ये इस तरीके से निकालना है, ठीक है। अब एक चीज और है कि आपका जो अभी ओमिटेड, अगर सीबीएसई का सिलेबस है 2020 कोरोना टाइम में, तो उसमें ये जो बाउंडेड मैंने रीजन्स कराए हैं, दीज टाइप्स आर डिलीटेड। सिंपल क्वेश्चंस हैं, लेकिन फिर भी वी डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क, हम फिर भी आपको करवा रहे हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए फॉर द हायर क्लासेस। और वैसे भी अगर कभी कोई क्वेश्चन बाई चांस आ जाता है, यू शुड बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ बाउंडेड रीजन ऑल्सो। हाँ जी, ये लास्ट एक कॉन्सेप्ट फिर आपको एक्सप्लेन कर दूं। वैसे तो आई टोल्ड यू, आई एक्सप्लेन यू इन द बिगनिंग ऑफ दिस लेक्चर, इफ यू फाइंड एनी सच कर्व, some portion is above the x-axis and some portion is below the x-axis, and you are to find out this shaded area, and then what to do, we will find out this point where this curve cutting the x-axis, suppose this is point C, then we will take the required shaded area, means all this area plus this area. This required shaded area will be from A to C. From A to C, we know that it would be written as y dx, क्योंकि अगर यहाँ पर एक छोटा सा हम स्लिट ले लेंगे तो ये dx हो जाएगा और ये y हो जाएगा y dx, and plus because the curve is the same, y is equal to fx है, and then from C to B y dx, because again we will take small slit here and the width of that slit will be again dx, and now in this case this will be kept in the modular sign because this shaded area is below x-axis, and when because it's a negative, but area can't be negative, it can never be negative, that's why I will take the absolute value of the area. So ultimately it would become A to C, y is fx dx, and then plus modulus value, absolute value from C to B fx dx. Don't forget to put this modulus sign if you find any area below x-axis. Now we'll start the sums of exercise 8.1.